हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमविन एकेडमी। वर्क स्मार्ट, सक्सेस इज योर्स। दिस इज माय मंत्र टू माय स्पेशल dear students, and let me introduce myself to my viewers who are going to be with me for the first time. मैं नीता गुप्ता, I'm a chemistry educator. I'm teaching 11th and 12th chemistry since last more than 15 years. And my videos are specially related to the topics which are covered in JEE and NEET examinations, and of course with set KVPY ये सब तो आते ही हैं by default. Okay, what today I am going to discuss with you all is, since in my last videos I have started with mock test problem solving for NEET examination for my NEET aspirants 2020. This time I am going to discuss a paper that is related to JEE mains for my JEE aspirants who are going to give examination in this 2020. Lockdown है, I know थोड़ा सा लेट जा रहा है, but of course काम तो करना ही है, वो तो चलता ही रहेगा. So today I am going to discuss with you all the sample paper 79, and this is related to JEE aspirants for JEE examination, that is JEE mains 2020. Successful people, they are not gifted, they are hard working. Very well said. इससे अच्छा कोई कोट और हो ही नहीं सकता कि हमारी जो सक्सेस है वो अगर हम देखें तो just by sitting and doing nothing doesn't make anyone success. और ये आपका एक दूसरी कहावत जो मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स. ये आपका समय है, जितना हो सके आप ट्राई टू गिव योर मैक्सिमम ऑफ योर टाइम, योर सेल्फ टू योर स्टडीज एंड गेट द गोल विच यू हैव एम्ड फॉर इट. एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू, एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस our session. Okay, and of course if you have not just still not click the bell icon, so do it so that you are getting the latest updates of my releases. Okay students, so we are going to start with the solution for mock test number 79 from NT Abhyas app, that is related to JEE mains. So here you can see on the screen, that is the first question from mock test number 79. That is, you have to find out, अगर आप देखें हैं इसके अंदर, so you have to find out the radius of the first orbit of helium atom, and you are given here the radius of hydrogen atom, which is given to you 0.52 into 10 to the power minus 8 centimeter. This is a question from atomic structure, and the formula is Rl equals to N into 0.529 into 10 to the power minus 10 meter upon सेट. ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है. या n की वैल्यू हो गई हमारी, फर्स्ट ऑर्बिट दिया है तो n की वैल्यू हो गई 1, ठीक है. और z जो है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, सो 1/2 ऑफ 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कर देंगे, क्योंकि ये आंसर जो है हमें सेंटीमीटर में चाहिए अपने को. ओके, आई एम सॉरी, it is n square, so it is 1 square. So when you will find out the answer, so you just have to make it half. So that is 2, 2, 5, 2. So what is that? 2 2 is 4, 2 6 is 12, and 2 4 is 8. So 0.264 into 10 to the power minus 8 centimeter. बहुत easy सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. फॉर्मूला जो अपने को यूज करना है, this formula which you have to use it. Okay, so keep it in mind. तो ये वाला आंसर हो गया फर्स्ट वन. Let's move to the next question. Second question which you can see is, we have to find out the decreasing order of nucleophilicity for the following anions. यहाँ आपको जो है, आपको कुछ anions दिए हुए हैं, उनका आपको एक decreasing order find out करना है, means which is most nucleophile followed by less nucleophile. तो आपको क्या करना है, what you have to do, first you have to understand the meaning of nucleophile. Nucleophiles क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग. दे आर द नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिनमें एक ऐसा लोन पेयर होता है जो कि वो डोनेट कर सकते हैं दूसरे सबस्ट्रेट को. व्हेन दे आर रिएक्टिंग, तो उस टाइम पे सबस्ट्रेट के
उस पॉइंट पे जहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, at that time when they will donate their lone pair, so they will act as a nucleophile because they are nucleus loving and they are already having the negative charge. तो वो क्या कर रहे हैं, they are seeking for some point जहाँ पे वो अपना नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो अपना नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सके एंड ट्राई टू गेट स्टेबलाइज. तो ऐसे में जो होता है हमारे लिए, जो हमें एक पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है. न्यूक्लियोफाइल्स और बेस में सिर्फ इतना ही फर्क है कि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, लेकिन बेस जो होता है दे डोनेट देयर लोन पेयर टू H+ आयंस. ठीक है. और जो नेगेटिवली जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं दे डोनेट देयर लोन पेयर टू द सबस्ट्रेट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो उसके लिए अपने को क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, दूसरा एक पॉइंट और जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वीक एसिड है, इफ द सब्सटेंस इज अ वीक एसिड, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा. ये अपने को याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर अपने ध्यान रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथेनॉल. मिथेनॉल अपने को बहुत अच्छे से पता है इट इज अ वीक एसिड, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, CH3O-. तो वो उसका स्ट्रॉन्ग, इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बेस और नॉट, यस इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो ऐसे में जो है ये कॉन्जुगेट बेसिस दिए हुए हैं. दीज आर ऑल गिवन टू यू कॉन्जुगेट बेसिस. और दूसरी चीज, ये जो कॉन्जुगेट बेस जो आपको दिए हुए हैं, इसमें जो एलिमेंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो सेम है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन दिया हुआ है इस केस में, सबके केस में. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसके एसिड्स बनाएंगे और फिर एसिड्स के हिसाब से हमको जब करेंगे तो हम अरेंज कर सकते हैं उनको, उन एसिड्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. एंड जब हम उसको करेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा एंड यू विल कम टू नो. लेट अस सी हाउ. यू कैन सी हियर, मैंने इनके जो है पहले से ही अरेंज करके लिख के रखा हुआ है. जैसे मिथेनॉल CH3CO2- यानी एसीटेट. तो एसीटेट जो है उसका कॉन्जुगेट बेस, इसका एसिड हो गया CH3COH. देन CH3O-, दैट इज दिस इज मेथॉक्साइड आयन, इसका एसिड हो गया, दैट इज इस कॉन्जुगेट बेस का एसिड हो गया मिथेनॉल. फिर C6H5O-, दैट इज फिनॉक्साइड आयन, उसका हो गया फिनॉल. एंड फाइनली NO3-, दैट इज नाइट्रेट आयन एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड इज गोइंग टू बी HNO3. तो ये जो है, अगर हम इनको देखें तो अगर हम इनको देखते हैं तो जैसे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा, द स्मॉलर इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, मोर इट विल बी न्यूक्लियोफिलिक, मीन्स इट विल बी हैविंग हायर टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अगर हम देखें तो मिथेनॉल, मिथॉक्साइड आयन का स्मॉलेस्ट साइज है. फिनॉल के अंदर क्या है, इट हैज गॉट द कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसके ऊपर ऑलरेडी 3 लोन पेयर्स हैं, तो दे विल ट्राई टू गिव इट इन कॉन्जुगेशन. तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टू रेजोनेट बिटवीन द 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच आर बॉन्डेड टू कार्बन. तो ये जो है नेगेटिव चार्ज जो है, ये ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, इन दिस केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, इट इज गोइंग टू get resonance stabilized because of the phenoxide ion resonance stabilization structure. Then when you talk about nitrate ion, so what will happen here? Here 3 oxygen, they are electron rich, so they will have the resonance stabilization. They will try to abstract the electron towards themselves. तो electron density nitrogen की कम होगी, लेकिन resonance stabilization की वजह से जो है पूरा structure जो है stabilized हो जाएगा. So if you look into this, so when you move from methanol to phenol to acetic acid to HNO3, एसिडिक कैरेक्टर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट. तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कैरेक्टर है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टूवर्ड्स मिथॉक्साइड आयन. तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन सा आयन हुआ, मिथॉक्साइड आयन, और उससे कम फिनॉक्साइड, फिर एसीटेट आयन, एंड सबसे जो वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा दैट इज गोइंग टू बी नाइट्रेट आयन. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? लेट अस सी द आंसर. व्हाट यू कैन सी हियर, आंसर कौन सा होने वाला है,
सबसे वीकेस्ट तो यहाँ पे हमें यही दोनों दिख रहे हैं, ए और सी। अब ए और सी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है मिथॉक्साइड दिख रहा है, फिर फिनॉक्साइड जो मैंने सीरीज बनाई है, तो मिथॉक्साइड, फिनॉक्साइड, देन एसीटेट एंड देन नाइट्रेट। सो योर आंसर इज हियर सी। ओके, ये नहीं होगा, दिस वन नहीं। लेट अस लुक इनटू द थर्ड क्वेश्चन। एट STP 2.8 liters of hydrogen sulfide were mixed with 1.6 liter of sulfur dioxide। ठीक है, एक रिएक्शन दिया है, STP कंडीशन में मेंटेन किया हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड दे आर द गैसेस, दे आर मिक्स्ड टुगेदर एंड रिएक्शन इज दिस। You have to show which of the following shows the volume of the gas remaining after the reaction। It is a very simple question related to stoichiometry। तो stoichiometry के ऊपर बेस्ड है और हमें इसके अंदर जो है एक्चुअली में लिमिटिंग रिएजेंट हमें देखना है कि कौन सा जो है रह गया है। दूसरा, इट इज अ एप्लीकेशन, यहाँ पे हमें एवोगेड्रोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी यूज करना है। ठीक है, एट STP कंडीशन। फिर हमें जो है हमें लिमिटिंग रिएजेंट को के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है। लेट अस सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस आई हैव रिटन द इक्वेशन। अगर हम इसको देखें तो अगर एवोगेड्रोस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को देखते हैं तो बिकॉज इट इज ओनली फॉर गैसेस, सो हियर यू कैन सी 2 moles ऑफ H2S reacts with 1 mole ऑफ SO2। तो ऐसे में जो है 2 वॉल्यूम ऑफ H2S विल रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम, यानी कि 2 लीटर्स अगर है तो it is going to consume only, it will require only 1 liter of sulfur dioxide। so 2 liters of H2S exactly आधा हो जाएगा। तो अगर हम देखें, अगर हम 2.8 लीटर ऑफ H2S लेंगे तो उसका हाफ हमें कितना लेना होगा, हाफ ऑफ 2.8 दैट इज 1.4 लीटर्स ही चाहिए। लेकिन आपके उसमें क्वेश्चन के अंदर 1.6 लीटर्स जो है वो यूटिलाइज करा है। सो एक्स्ट्रा इट इज हाउ मच, सो दिस इज गोइंग टू what is going to be the limiting reagent? This is going to be the limiting reagent। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। और एक्स्ट्रा कितना रहा, एक्सेस ऑफ SO2 कितना रहा, एक्सेस ऑफ SO2 is only simply 1.6 minus 1.4 that is 0.2 liters of SO2। so this is going to be your answer। okay, so let us see which is the option। so what you are observing here, 1.6 minus 1.4 that is 0.2, so this is going to be your answer। okay, what is the next question? which of the following statements are correct? तो ये सब तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस है जो आपके नॉलेज में अगर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर पाओगे। अ सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए पाई बॉन्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो इट इज यस, इट इज करेक्ट। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, इज इट राइट और रॉन्ग? सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीकर बॉन्ड। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। HF इज इट मोर पोलर देन HCl? यस, HF फ्लोरीन जो है इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो HF इज मोर पोलर देन HCl, इज मोर पोलर देन HBr, इज मोर पोलर देन HI। तो ये कंडीशन जो होती है उसके हिसाब से, बिकॉज F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17, सो HF इज मोर पोलर देन HCl, राइट। देन there is 1 electrovalent bond and 3 covalent bond in methylene chloride। methylene chloride is CH2Cl2। कार्बन के कंपाउंड्स हैं तो क्या होने वाले हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होने वाले हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड सारे के सारे वो जो है इट इज गोइंग टू फॉर्म विद 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये वाला 4th वाला रॉन्ग हुआ। So 1, 2, 3. So 1, 2, 3 are the right answer. So option D is the correct one. Next question is, you have to calculate the work done when 2.5 moles यानी N value हो गई, it vaporizes at 1 atmosphere, यानी प्रेशर आपको दे दिया है 1 atmosphere, N की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 moles, फिर टेम्परेचर इट इज 25 + 273 that is 298 Kelvin दे दिया है आपको। You have to assume that the volume of liquid H2O is negligible compared to that of vapor। Okay, you are given 1 liter atmosphere
101.3 जूल्स एंड आर की वैल्यू दी है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर। नाउ कैलकुलेटिंग फॉर दैट, अरे नॉट प्रेशर, प्रेशर तो दिया ही हुआ है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, क्योंकि हमें डेल्टा V कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज V? सो V इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। n की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है? यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ n एज 2.5, R की वैल्यू अपने को दी हुई 0.082 एंड 298 केल्विन। तो हम जो है ना, अब अपने को पता है यहाँ पे कैलकुलेशन हम अप्रोक्सीमेशन से भी काम कर सकते हैं। सो इट इज 2.5 इंटू 8, मैं भी आपको कर रही हूँ, आप अपने आप जो है फटाफट वाला कैलकुलेशन कर सकते हो। आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। इंटू 2.9 दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 2 कर देंगे, तो यू विल गेट इट अराउंड 61.5 दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम है ना, तो लीटर में हुआ क्योंकि आर की वैल्यू आपने लीटर में लिया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 101.3, सॉरी अपने को ये कितना मिलेगा 61.5 लीटर्स, राइट। सो दिस इज द फाइनल लीटर। तो हमें डेल्टा V अब कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा V में आपको पहले से ही दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस वॉल्यूम? दैट you have to assume the volume of liquid water is negligible compared to that of vapor। यानी लिक्विड से जब वो वेपर में गया तो वॉल्यूम का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल था। तो दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम जो अभी हमने कैलकुलेट करा उसमें से हम जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट इज गोइंग टू टेक इट एज 0। सो डेल्टा V विल बी सेम एज दैट व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। सो इट इज गोइंग टू बी 61.5 जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वेपर का, और इनिशियल वाटर का हमें 0 लेना है, तो हमें जो वॉल्यूम मिला वो 61.5 लीटर ही मिला, राइट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट W। इट इज P इंटू डेल्टा V। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 61.5 और इंटू 101.3 से हमें मल्टीप्लाई करना है सो एज टू गेट द आंसर इन जूल्स। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, सो यू कैन यूज दिस 61.5 इंटू 1.01 करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम द आंसर विल बी वेरी इजी, 615, ठीक है ना, 6.15 किलो जूल्स हो जाने वाला है। सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। सो 6.19 किलो जूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन विद बेंजीन। अगर आप देखो इसके अंदर आपको जो पूछा गया है, ये दे हैव बीन आस्क्ड दैट which of the following will not give 2-phenyl butane as the major product in Friedel-Crafts alkylation reaction with benzene। तो यहाँ पे हमें ये जितने भी यहाँ पे रिएजेंट्स दिए हुए हैं उसके हेल्प से हमें देखना है कि फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर हम करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 1 ब्यूटीन प्लस HF, अगर आप ध्यान से देखो सारे क्वेश्चन, जैसे 1 ब्यूटीन, तो दिस इज 1 ब्यूटीन प्लस HF, तो एक्चुअली में ये जो बनाएगा ये कार्बोकेटाइन बनाएगा और उसकी वजह से आपको जो है कार्बोकेटाइन मिलेगा, दिस वन, दिस इज द कार्बोकेटाइन विच यू आर गोइंग टू गेट। और जब आप इसको बेंजीन के साथ रिएक्ट करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, you will get an alkyl benzene with this one. Similarly, when you take, ये पहला हो गया, this will give you 2-phenyl butane which will not give you, है ना। तो यहाँ पे अब 2-butanol देखते हैं। 2-butanol में क्या होगा, it is OH, और जब ये H2SO4 यानी H2SO4 जो है अपना H+, इसको डोनेट करेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू एक्चुअली OH2 विद द पॉजिटिव चार्ज। तो ये फिर से स्टेबलाइज होके वाटर बाहर निकल जाएगा एंड यू विल गेट ए कार्बोकेटाइन। तो अगेन दिस इज गोइंग टू, जब ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, 2-phenyl ब्यूटेन देगा। तो ये भी देगा, ये भी देगा। अब
हम जो है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड को देखते हैं। तो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड पहली बात तो दिस इज ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, एंड जब हम उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट पहली बात तो अल्काइलेशन नहीं होता है, इट इज गोइंग टू बी एसाइलेशन। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज ए लुईस एसिड, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पे Cl जो है इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पोलराइज्ड बॉन्ड है और ये जो है पार्शियल पॉजिटिव है। सो बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली ये पूरा यहाँ से लेके जो है इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ कार्बोकेटायन लाइक दिस, ठीक है, ये कार्बोकेटायन देगा। अब जो है बनेगा क्या इसकी वजह से, बेंजीन के ऊपर it is going to give you something like this. एक मिनट, let us now see the reaction with butanoyl chloride. तो जो butanoyl chloride है it is something like this. This is butanoyl chloride plus AlCl3। तो पहली बात जो है ब्यूटेनॉइल क्लोराइड या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं होगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। So benzene plus butanoyl chloride in presence of AlCl3, what it is going to give you? It is going to give you जो है ये इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड है, this is going to form an intramolecular polarized species with Cl, and then finally बेंजीन के ऊपर जो है एसाइल ग्रुप की जगह पे COR ग्रुप लगेगा, तो COR, तो R जो है दैट इज 3 कार्बन का चेन होगा। सो इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, पहला फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। फिर उसके बाद हम ZnHg और HCl दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, दिस कीटोन ग्रुप it is going to get converted into what, alkyl group, so you will get something like this, CH2 हो जाएगा। this change is going to be this, you can see the change, Clemmensen reduction, okay। so you will get not 2-phenyl butane but you are going to get actually it is butyl benzene, okay, N-butyl benzene now, and finally butyl chloride plus AlCl3। so butyl chloride, this is butyl chloride plus AlCl3, so what it is going to give you, it is going to give you a carbocation, ये प्लस है बट उसकी ये जो है जो कार्बोकेटायन है देयर इज गोइंग टू बी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, and because of that you will get secondary carbocation which is a more stable one। so in this case also when it is this carbocation, it is going to attack at the site of benzene, so it is going to give you the same product as the above one, 1, 2 and 3 they are going to give you the same product। तो जो नहीं देगा वो आंसर हो गया this one, so this is going to be your answer। वेरी नाइस क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है, कार्बोकेटाइंस का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन लुक इनटू द कंसिडरेशन। जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो तो क्या वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखता है, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन से इज दैट इज रिलेटेड टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स BCl3 एंड AlCl3। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला बोरॉन एंड एल्यूमिनियम को अगर हम देखें ग्रुप 13 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दे आर बोथ आर लुईस एसिड। अब हमें ये देखना है कि BCl3 स्ट्रॉन्गर है या AlCl3 स्ट्रॉन्गर है, तो उस केस में हमें जो है बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, दैट इज पी वाली बैक बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम दूसरे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। बोथ BCl3 एंड AlCl3 आर लुईस एसिड, यस। AlCl3 इज स्ट्रॉन्गर देन BCl3, तो इन दोनों में से अपोजिट दिया है। अब दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स है, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, सो थर्ड ऑप्शन नहीं है। बोथ आर नॉट लुईस एसिड, तो ये भी गलत है, सो ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब इन दोनों में से हमें क्या चेक करना है, विच वन इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड।
तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब हम देखेंगे अगर बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है तो इट हैज़ गॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस तरीके से दे देगा और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। सो इट हैज़ गॉट 2p वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। अब Cl जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p5। तो ऐसे में जब ये बॉन्डिंग करेगा 3p5 तो एक p जो है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड एंड तीन बॉन्ड जो है 3 Cl बना देंगे और एक जो p जो का इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इट इज़ गोइंग टू डोनेट हियर इन दिस वेकेंट ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से जो बैक बॉन्डिंग होगी वो 2p पाई एंड 3p पाई हो जाएगी, जो कि साइज डिफरेंस होने की वजह से बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी ए नॉन इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, राइट। अब हम AlCl3 को देखते हैं। AlCl3 में क्लोरीन जो है ऑलरेडी 3s2 3p5 है और जो एल्यूमिनियम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। सो इट इज़ गोइंग टू शो 3s2 3p1। सो व्हाट विल हैपन, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3px1 3py1 एंड 3pz0। तो ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे जो है क्लोरीन जो है अपना एक लोन पेयर डोनेट करेगा फॉर द बैक बॉन्डिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल शो एल्यूमिनियम का जो है 3p पाई एंड क्लोरीन इज ऑल्सो फ्रॉम थर्ड ऑर्बिटल। सो इट इज p पाई बॉन्डिंग फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ साइज जो होगा p ऑर्बिटल का सेम होगा, तो ये बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव। तो बैक बॉन्डिंग मोर इफेक्टिव होने की वजह से मोर स्टेबिलिटी यानी कि एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाएगा। सो विच इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑब्वियसली BCl3 इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन AlCl3। ओके, सो योर ऑप्शन इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो पॉज करना चाहिए एंड देन यू ट्राई टू solve the question and then look into the solution which I am discussing with you, so that it will give you a real feel of the examination which you are doing it। मैं already जो है PDF फाइल जो है क्वेश्चन पेपर की आप लोगों को जो है कमेंट्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, so that you can first download the questions and then you can solve it so as to get the real feel of the examination। Okay, so next question number 8। Next question which you can see here, they are asking increasing order of basicity among the following। तो basicity you know amines या फिर substituted amines they are basic in nature। तो यहाँ पे जो है हमें क्या देखना, अगर बेसिक कैरेक्टर है तो नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर जो है लोन पेयर कितना लोकलाइज्ड है। तो कितना लोकलाइज्ड है तो हमें जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी हियर CO दैट इज मिथॉक्सी ग्रुप दोनों तरफ दिए हैं, दोनों ही मिथॉक्सी ग्रुप दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ पे भी डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ओके, नाउ हियर द मिथॉक्सी ग्रुप्स जो हैं इन बोथ द केसेस इन वाई स्ट्रक्चर मिथॉक्सी ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन दैट इज ऑर्थो पोजिशन, राइट, वेयर एज इन केस ऑफ Z they are located on para position। ओके, अब जो है हमें एक पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट जो याद रखना है कि जो ऑर्थो इफेक्ट होता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो इफेक्ट विल डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, बिल्कुल अपोजिट होता है एसिडिक कैरेक्टर को ध्यान में देखते हुए। इफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन तो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन अगर हम जो है बेसिक कैरेक्टर यहाँ चेक करना है
यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, तो बेसिक कैरेक्टर में ऑर्थो इफेक्ट जो है वो बेसिक कैरेक्टर को कम करने वाला है. ओके, सो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो है इट विल डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, और ये जो है पैरा पोजीशन पे इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर. तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, और ये वाला जो है डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे मिनिमम बेसिसिटी जो होगी ये कहाँ पे होने वाली है, थर्ड वाई पे. सो दे आर आस्किंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम से सबसे ज़्यादा. सो वाई एक्स जेड, तो वाई एक्स जेड कहाँ पे हुआ, ए. सो दिस इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, राइट. सो वाई सबसे कम बेसिक है, उसके बाद जब है ही नहीं मिथॉक्सी ग्रुप, और सबसे ज़्यादा जो बेसिक कैरेक्टर है वो है इन दिस सेट. ओके, next question, if you see here, the next question that is related to chemical kinetics. In the first order reaction, concentration of the reactant will decrease from 0.8 to 0.4, ठीक है, in 15 minutes. So you have to calculate the time taken for the concentration to change from 0.1 molar to 0.025 molar. तो इसके लिए अपने को क्या करना है, 0.8 मोलर है, it has reduced to exactly half, 0.5 molar, 4 molar. So that means जो इसका हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना हुआ, 15 मिनट्स. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. आई होप कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि जो है हाफ लाइफ पीरियड इज व्हाट, इट इज़ द टाइम टेकन टू डिक्रीज द ओरिजिनल कंसनट्रेशन एग्जैक्टली टू इट्स हाफ वैल्यू. तो 0.4 मोलर अगर मैंने शुरुआत में लिया तो उसका हाफ वैल्यू कितना हुआ, सॉरी 0.8 मोलर अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया तो उसका हाफ जो हुआ दैट इज 0.4 मोलर. अब जो है ये जो है चाहे तुम कोई भी कंसंट्रेशन लो, लेकिन उसका हाफ लाइफ पीरियड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला हाफ लाइफ पीरियड इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन. तो ऐसे में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब आपको दिया है 0.1 मोलर, शुरुआत अगर सपोज 0.1 मोलर दी हुई है तो इसका आधा कितना होने वाला, दे आर आस्किंग इट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू चेंज द कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 टू 0.025. तो हाउ मच इज इट इज गोइंग टू बी द हाफ, दैट इज 0.5. ठीक है, तो एक हाफ लाइफ हो गई. फिर 0.5 का दूसरा फिर से आधा करेंगे तो वो कितना होगा, 0.025 मोलर. तो ये दूसरी हाफ लाइफ हो गई. सो यू कैन सी देर आर 2 हाफ लाइफ दैट आर रिक्वायर्ड. सो 2 हाफ लाइफ का मतलब है एक हाफ लाइफ अगर 15 मिनट्स की है तो 2 कितनी हो गई, 30 मिनट्स की. सो योर आंसर इज 30 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू कैन प्रिपेयर बेंजोइक एसिड इफ़ यू आर यूजिंग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एज द स्टार्टिंग मटेरियल. तो अगर हमने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है स्टार्टिंग में, तो हम इन चारों में से जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हम किससे हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे. तो इफ़ यू रिमेंबर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जब मैं स्टूडेंट्स को कराती हूँ तो इट हैज़ टू बी यूज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना होता है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, CO2. So you know it is a source of carbon and Grignard reagent है ये. So what will happen, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी हाई है तो it is going to attach from the side of CO2. So what you are going to get, benzene. I hope कि आपको समझ में आ ही गया होगा ये CO O minus MgBr. राइट, दिस इज द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन प्रोडक्ट. और सेकेंड स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको पता है हाइड्रोलिसिस होता है. तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर से यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा यानी कि ये आएगा H+ इधर और यहाँ पे OH- आ जाएगा. तो यू विल गेट फ्रॉम दिस बेंजोइक एसिड.
plus MgBr OH. So this is a very easy reaction. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे रिग्नार्ड रिएजेंट को तो हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा. Next question which you can see is, it is related to coordination compounds. 1 mole of a complex compound, this is the complex compound, it will give you 3 moles of ions in water when it dissolves. तो एक जो है ये complex compound हो गया. When you dissolve it in water, it will give you 1 complex ion and साथ में ये 2 another ions भी देगा, 2 ions. तो टोटल जो होंगे ions होंगे वो टोटल जो होंगे 3 ions होने वाले हैं, एक complex plus 2 other ion. ऑब्वियस सी बात है, इसमें आगे लिखा हुआ है सेम कॉम्प्लेक्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद AgNO3 तो इट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ AgCl. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आयंस होंगे, जो नेगेटिव आयन होंगे वो Cl माइनस आयंस होंगे. व्हाई? बिकॉज AgNO3 इट गिव्स यू Ag प्लस आयंस. ठीक है, और ये जो है 2 मोल्स ऑफ AgNO3 विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस आयंस. दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद Cl माइनस आयंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सो दे विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ AgCl. राइट तो हमें एक ऐसा इन कंपाउंड देखना है, स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि बाहर जो है देयर शुड बी 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस होने चाहिए. तो अब हम इसमें देखते हैं, तो इसमें तो ऑल द 3 Cl आर गोइंग इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं ये कोबाल्ट के साथ. तो इसमें जो है ये जो है दे आर नॉट फ्री. व्हेन दे आर नॉट फ्री दे वोंट बी एबल टू रिएक्ट विद सिल्वर आयन. सो कौन सा रिएक्ट करेगा? यहाँ से हमें सिर्फ 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा. यहाँ से हमें जो है इन दोनों में से हमें जो है यू कैन सी हियर देयर आर 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस आयंस विच आर फ्री, क्योंकि ये वाला जो अंदर है कॉम्प्लेक्स आयन जो है ये तो अंदर जो है ये इट इज एक्टिंग एज ए लिगेंड. तो लिगेंड्स आर नॉट रिएक्टिंग विद Ag प्लस आयंस. ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि लिगेंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. सो दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद सिल्वर आयन. जो भी आयनाइज्ड आयंस हैं वहीं पे जो है रिएक्शन होगा. तो आयनाइज्ड जो आयंस हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे NH3Cl, 2 मोल्स ऑफ Cl एंड 1 मोल ऑफ NH3. तो पहली बात तो हमें ये देखना है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ नेगेटिव आयंस होने चाहिए. तो यहाँ पे जो 2Cl है तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, बाकी ये दोनों तो नहीं होने वाले. अब इन दोनों में से अगर तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करो तो ध्यान से देखो, 4 + 1 it has got coordination number 5, whereas this has got 5 + 1 it has got coordination number of 6. So it is a more stable complex compound. तो यही हमारे लिए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा. तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी द 4D ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. Which option is not matched in correct sequence? यहाँ पे आपको अनपेयर्ड नंबर ऑफ d ऑर्बिटल्स दिए, d इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और उनका इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट बोला है, और फिर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी. कैसे देखना है? D5, फिर D3, देन D1 एंड D4. 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स होते हैं. तो हर एक में जो है एक एक अनपेयर्ड वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन्स की. तो अगर हम D5 का देखें तो इसकी वैल्यू है n = 5. तो जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला √n+2, तो उसमें जो है हम n की वैल्यू 5 रखेंगे. तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा इसका सबसे हाईएस्ट आएगा. ठीक है, फॉलोड बाय 4, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेकेंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, और लास्ट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में ये आएगा. सो इन दैट केस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? सबसे कम किसका होगा? यहाँ पे 1 होना चाहिए था, फिर 3 होना चाहिए था, फिर 4 होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था. तो ये ऑप्शन तो नहीं है. फिर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, वो कैसे देखेंगे? वो हमें इस तरीके से देखना है कि ये जो है मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है. तो यहाँ पे -2 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका +3 है, इसका +4 है और इसका +5 है, ईच मेटल M. तो जो है मेटल ऑक्साइड्स, अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, यू शुड रिमेंबर, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है. ठीक है,
एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है. तो विच ऑप्शन इज नॉट मैच्ड इन करेक्ट सीक्वेंस. तो ऑब्वियसली ये बात तो हुई नहीं, तो ये वाला नहीं हुआ. तो हमारे हिसाब से तो आंसर तो पहला हमें मिल ही गया है, तो ये वाला सही है. फिर स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम आपको पता है एटॉमिक नंबर 21 है. इट हैज़ गॉट 3 इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d1. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. वेनेडियम का 4s2 3d2 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2n +4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा. क्रोमियम का है 4s1 3d5. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम देखेंगे तो इसका और भी ज़्यादा हो जाएंगे. फिर Mn का है 3d5 हो गया, उसका 4s2 3d5. सो इट विल हैव +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा. ओके. सो इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे जैसे हम यहाँ स्कैंडियम से मैग्नीज पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज होते जा रहे हैं. नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इंक्रीजिंग. ओके. फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है, जैसे कोबाल्ट है, हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा है, इंक्रीज हो रही है. तो सबसे कम कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 27 होता है, तो इट इज़ 4s2 3d7. यानी कि जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, अगर हम Fe+3 की बात करें, कंपेयर कर रहे हैं अपने, तो 4s2 3d6 उसका न्यूट्रल स्टेट में होता है, +3 का मतलब है 3d5 हो गया. ठीक है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का इट इज़ मोर स्टेबल रादर देन कोबाल्ट +2 में ये 3d7 हो जाएगा. ठीक है. 3d7 का मतलब है 5 उसके इलेक्ट्रॉन्स, और +3 के मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सारे के सारे हाफ फिल्ड हैं, तो इट इज़ मोर स्टेबल रादर देन CO+2. Cr+3 की बात करें तो इट विल बी 3d3 हो जाएगा. 4s1 आप कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5 है, +3 का मतलब है d4 हो गया. ओके. और स्कैंडियम +3 का मतलब है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर. सो इफ़ यू ऑब्जर्व, स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है. तो ऐसे में जो हमारा जो नॉट मैच्ड इन करेक्ट सीक्वेंस वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला. सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया A. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. तो व्हाट यू फाइंड, इट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन दैट इज इक्विलिब्रियम. यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, CuS 4 moles when react it gives you 2 moles of copper, that is cuprous oxide, and oxygen gas is released. Now they are asking, consider the following statements. ये 4 statements दिए हुए हैं. Now they are asking which one of them are correct. तो ऑब्वियस सी सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये इक्वेशन के अंदर अगर मुझे Kp देखना है तो Kp का इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ही बनेगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है और बाकी के Cu and Cu2s दे आर सॉलिड. तो ये पहला वाला करेक्ट है. फिर Kp विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ Cu and Cu2. ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि Kp इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर सॉलिड्स और का तो हो ही नहीं सकता. सो इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन प्रेशर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. नाउ Kp इज लेस देन Kc या फिर Kp इज ग्रेटर देन Kc. तो यहाँ पे हमें जो है यू हैव टू लुक इनटू द रिलेशनशिप. Kp is equals to Kc RT raised to the power delta Ng. ठीक है. तो अब हम यहाँ इक्वेशन से अगर कैलकुलेट करते हैं डेल्टा Ng की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन की 1 हो गई, सॉलिड्स का हम कंसीडर नहीं करेंगे तो 1 - 0, सो यू विल गेट 1. तो हमारे पास क्या हो गया, Kp इज इक्वल्स टू RT Kc. अब RT इट इज जो है दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो ऑब्वियस है कि Kp इट इज ग्रेटर देन Kc.
ठीक है ना। Kc कितने टाइम्स Rt, कितने टाइम्स हो जाएगा, Kc इंटू Rt, सो दैट मीन्स Kp इज ग्रेटर देन Kc। तो ये वाला इक्वेशन सही है, ये दोनों गलत है। तो 1 and 4 दे आर करेक्ट, सो योर आंसर इज C हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। या हियर यू हैव टू, this is a roadmap type of question. You are given an phenyl bromide and you have to treat with magnesium ether. तो magnesium ether के साथ react करेंगे तो what you will get, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, it is benzene MgBr। ठीक है, फिर जब हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, अभी हमने राइट नाउ जस्ट नाउ वी हैव डन इट, दैट यू आर गोइंग टू गेट बेंजोइक एसिड इससे मिलेगा। ठीक है ना, वो हमने सीरीज ऑफ क्वेश्चन करा था, कौन सा भी पिछला जहाँ पे बेंजोइक एसिड कैसे बनता है। तो CO2 और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो पहले ये बनाएगा यहाँ पे बेंजीन COOMgBr, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये OH माइनस ले लेगा और यहाँ H प्लस आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. Let us look into the next question, that is question number 15, which is related to the topic which is held in P block elements. तो P block elements के अंदर जो है खासकर जो है हमें स्ट्रक्चर्स और हाइब्रिडाइजेशन एंड बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में काफ़ी क्लियर होना चाहिए, तो क्वेश्चंस को करने में इतना डिफिकल्टी नहीं होता है। सो एज यू कैन सी हियर दे आर आस्किंग यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज यू कैन सी हियर दैट पहला स्टेटमेंट, ज्योमेट्री अराउंड एन एटम इन ट्राइमिथाइल अमाइन इज पिरामिडल। यस, इट इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज in trimethyl amine nitrogen it is sp3 hybridized। ठीक है, ये sp3 hybridized है। फिर जो है उसकी वजह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो इट हैज गॉट 2s and 2p, जहाँ पे 2s2 2p3 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जो है जिसकी वजह से जो होता है देर इज अ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट। सो इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज CH3 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी, एंड देर इज वन लोन पेयर। सो दिस लोन पेयर इट कैन बी डोनेटेड in the form of coordinate bond like NH3. It has got one lone pair. It can be donated to Lewis acid like BF3, क्योंकि बोरॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। So this lone pair can be donated to BF3 because it is free. Why it is free? Because अब जो है यहाँ पे अगर हम कार्बन देखते हैं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 6 के हिसाब से इट हैज़ गॉट 2s2 2p2। तो ऐसे में जो है व्हाट विल हैपन इन एक्साइटेड स्टेट दैट कार्बन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s इलेक्ट्रॉन दैट विल मूव टू द वेकेंट p ऑर्बिटल, राइट। तो अब जो है कार्बन जो है इट कैन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो जिसमें से कार्बन अगर आप देखो तो ये वाला जो कार्बन है, इफ यू विल सी हियर कार्बन, लेट अस टॉक अबाउट दिस मिथाइल ग्रुप, दिस कार्बन इज बॉन्डिंग विथ 3 हाइड्रोजन और एक जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड वो नाइट्रोजन के साथ बना देगा। सो दैट मीन्स दिस all the 4 orbitals will be utilized in forming the sigma bond with 3 with hydrogen and 1 with nitrogen। तो ऐसे में जो है कोई बैक बॉन्डिंग की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम यही ट्राइसिलाइल अमाइन की बात करते हैं, ओके, सो ट्राइसिलाइल अमाइन के अंदर as you can see here in triacylyl amine silicon is having the atomic number 14। तो जब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p2। तो दैट मीन्स 3s के अंदर जो है
2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s इट कैन बी allowed to jump into vacant 3p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो है, अब जो है अगेन सिलिकॉन एज लाइक कार्बन इट इज गोइंग टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और जो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे जो है इन विथ SiH3 thrice n, in this case nitrogen is going to form sp2 type of hybridization। तो जब वो sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इसके अंदर जो एक वेकेंट जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस कैन बी शेयर्ड विद द वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, जो कि पॉसिबल नहीं था इन केस ऑफ व्हेन इट वाज CH3 ग्रुप। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। कार्बन के अंदर जो था जो देयर वाज नो वेकेंट ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा था, तो लोन पेयर को नाइट्रोजन कहीं पे शेयर नहीं कर पा रहा था। ओके, सो whereas in this case this electron pair it can be very easily shared in this vacant d orbital। तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पे, in this case it is going to form p pi type of bonding, p pi from nitrogen, that is 2p pi and 3d pi type of back bonding is possible। मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल बनने के बाद जो लोन पेयर है, वो जो ये जो लोन पेयर यहाँ से जो है, दिस कैन बी यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग द बैक बॉन्डिंग विथ द वेकेंट d ऑर्बिटल। सो व्हाट विल हैपन, जब यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा तो SiH3 3 टाइम्स n, अगर मैं चाहूँ कि ये BF3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकेगा तो नहीं कर सकेगा, कारण कि ये जो लोन पेयर जो है ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा, इन इट विल बी यूटिलाइज्ड इन फॉर्मिंग द बैक बॉन्डिंग, दैट इज 2p pi 3d pi। तो जिसकी वजह से दिस मॉलिक्यूल will does not show any donor property। तो ये कोई भी डोनर प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, रीजन ऑफ मोर स्टेबलाइज्ड बैक बॉन्डिंग टाइप ऑफ सिचुएशन इन केस ऑफ ट्राइसिलाइल अमाइन। ओके, सो if you look into the options, geometry around an atom in trimethylamine is pyramidal, yes। Geometry around an atom in trisilylamine is planar, yes, because in this case it is going to show sp2 type of hybridization। यहाँ पे sp3 hybridization थी, लेकिन यहाँ पे sp2 था। 3 जो थे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग थे और एक लोन पेयर जो था बैक बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो रहा था। फिर जो थर्ड पॉइंट है, नाइट्रोजन एटम इन trimethyl amine is sp2 hybridized, while in this case of trisilylamine it is sp2 hybridized, yes, ये भी ट्रू है। तो ट्राइसिलाइलामाइन हैज गॉट डोनर प्रॉपर्टी, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है 2p pi 3d pi, तो जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी डोनर प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, जबकि ट्राइमेथाइलामाइन हैज गॉट 1 लोन पेयर बिकॉज ऑफ sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। So it really shows the donor property, whereas it does not show the donor property। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो फोर्थ पॉइंट है that is incorrect statement। So this is your answer here, right? I hope you have able to understood this question। Now next question, that is question number 16। Let us see that if you say this is the question which is related to organic chemistry, if you use a strong base, any NH2 is a very strong base followed by liquid ammonia, it is SNEA type of mechanism is here, and there will be benzene formation as an intermediate।
SN means nucleophilic substitution, elimination, addition mechanism. So as you can see here, the first step will be the hydrogen which is present here next to this carbon, that is CCl bond के साथ वाला ये hydrogen जो है acidic proton है. So what will happen? It will try to form the bond with this, जिसकी वजह से जो है -NH3 and you will get a conjugate base like situation. ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस. सो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर जो है यहाँ पे शेयर करेगा और जो है दिस Cl इज गोइंग टू लीव द सिचुएशन, अपनी जगह छोड़ देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम बोलते हैं बेंजाइन. ठीक है, दिस इज ए बेंजाइन. क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस सिचुएशन, देखते हैं. स्टेप 1 में क्या हुआ, दिस strong base, it has tried to deprotonate it has tried to eliminate the acidic proton from here, and as a result you got a conjugate base here. And then a benzyne which is an intermediate transition state में जो benzyne बना है, this is unstable intermediate. Now what next, formation of benzyne, it is slow step and it is a rate determining step. ठीक है, और ये एक इंटरमीडिएट होता है. नेक्स्ट स्टेप में जो ये बेंजाइन बना है, इट इज ए अनस्टेबल स्पीसीज. सो अब जो है, जो अमोनिया, सेकेंड स्टेप में जो अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है. दिस लोन पेयर इट कैन बी एडेड फ्रॉम बोथ द साइड. ये यहाँ से भी ऐड हो सकता है और यहाँ से भी ऐड हो सकता है. तो लेट अस सी कहाँ से ये ऐड होगा. तो दोनों सिचुएशन हम देखने की कोशिश करेंगे. पहले हम ये वाली सिचुएशन देखते हैं. सो व्हेन इट विल ट्राई टू ऐड एडजेसेंट टू मिथाइल ग्रुप, तो जब ये यहाँ पे ऐड होगा तो व्हाट विल हैपन, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये जाएगा ये इस सिचुएशन पे, तो ये यहाँ पे NH3 ऐड होगा, है ना. जब अमोनिया यहाँ पे पूरा ऐड होगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे जाने वाला है और ये जो पाई बॉन्ड था ये इधर जाने वाला है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि हाइड्रोजन को दे देगा. तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है. बट दिस इज अगेन स्टेरिक हिंड्रेंस होगा यहाँ पे. Why? Because OMe and NH2 adjacent to one another, so due to steric hindrance this will be going to be an unstable situation. और दूसरी सिचुएशन कुछ इस तरीके से होने वाली है. हम जो ऐड करेंगे, जो NH3 ग्रुप है, हम नीचे की तरफ से जैसे थर्ड पोजीशन पे ऐड करने की कोशिश करेंगे. यू कैन सी हियर OMe. अब ये जब यहाँ पे NH3 यहाँ ऐड होगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. बिल्कुल सही है ना. तो ये जो बॉन्ड जो ये यहाँ पे था, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू मूव टू दिस साइड इन दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे मैं आपके ये ऑरेंज कलर से डॉट से बना रही हूँ. तो जब ये बना तो व्हाट विल हैपन, ये जो हाइड्रोजन है ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा और ये जो है ये नाइट्रोजन पे ये जो है बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है
कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से, OMe, फिर यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे NH2 रह जाएगा. Now this is a more stable product. C option is the right answer here. Question number 17. You have to find out here the best electrolyte which will help in the coagulation of arsenic sulfide. Now we should remember the nature of the salt. It is a negative salt. So because it is a negative salt, according to Hardy-Schulze rule, the electrolyte which is best suited for it, it is going to be first thing, electrolyte जो है उसका positive आयन जो है उसका सबसे मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए. यही जो है Hardy-Schulze rule के हिसाब से होना चाहिए. So according to this you will have to look here the charge of each electrolyte. यहाँ पे NaCl का +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है, और थोरियम का अगर हम काउंट करें तो इसका +4 चार्ज है. तो ऑब्वियसली it is going to be the best electrolyte so that it can coagulate this arsenic sulfide. Okay, next question. If you will see here in question number 18, you are given list 1 and list 2. In the list 1 they have given some salts, and list 2 they are asking you to predict whether they are acidic, neutral or alkaline. तो जब हमें इसमें acidic, neutral और alkaline देखना है तो हम दो तरीके से देख सकते हैं. या तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या ऐसा इसे कुछ हम इस तरीके से बोलेंगे. आपको पता है कि एसिड एंड बेस व्हेन दे रिएक्ट दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो सॉल्ट का जो है हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें वापस एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा. तो अगर हमें जो है अगर अच्छे से पता है जैसे K2SO4 इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. हाइड्रोलिसिस इट इज़ पॉसिबल? नो. तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो जब हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी न्यूट्रल. But when you talk about acetate, sodium acetate, it is CH3CO minus Na plus. So it is a salt of strong base and weak acid. तो जो weak acid है उसका तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. ठीक है, तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बचेगा क्या? Na plus. तो Na plus के सामने जो OH minus ions होंगे they will be responsible for the basic nature of the salt. So sodium acetate it is alkaline. Ammonium chloride. Ammonium chloride क्या है? It is a salt of weak base plus strong acid. तो weak base का तो हाइड्रोलिसिस हो गया. ठीक है, लेकिन strong acid जो Cl माइनस है जिसकी वजह जो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो उसकी वजह से जो H प्लस आयंस रह जाएंगे they will be responsible for the acidic nature of the salt. Finally calcium formate. Formate ion is HCO minus 2 times calcium. तो जब ये आयनाइज होगा तो इट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी वीक है, और जो एसिड मिलेगा HCOH वो भी वीक एसिड है. तो इनका अगर मुझे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट पता है इन दोनों का देन ओनली आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर दे आर एसिड और बेस. तो हमें इस केस में हमें Ka और Ka एंड Ka वैल्यू या फिर Kb वैल्यू या फिर KH वैल्यू दोनों हमें अगर पता है तो ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर कैल्शियम फॉर्मेट इट इज़ एसिडिक और बेसिक. सो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. अब जो है हम देखते हैं P न्यूट्रल आता है, तो यानी कि P के रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला होगा. ठीक है, लेकिन साथ में अगर हम देखेंगे तो सोडियम एसिटेट इज 3 यानी Q इज 3, तो Q3 आ गया, R1 आ गया एंड S4, तो यही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन से ही रिलेटेड दिया है. दे हैव गिवन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दे हैव गिवन द स्ट्रेंथ दैट इज 3% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A विच इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 9% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B. तो ऐसे में हमें जो है, और हमें A का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है 60, हमें B का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. तो
हमें पता है डेल्टा TF ऑफ A will be equals to डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर B. ये दोनों सेम है, ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? I इंटू KF ऑफ मोलैलिटी ऑफ A, ये A के लिए हो गई, इज इक्वल्स टू I इंटू KF ऑफ मोलैलिटी ऑफ B हो गई. अब KF क्योंकि सेम सॉल्वेंट है, वाटर है, तो KF भी सेम होगा, I इज सेम, सो MA विल बी इक्वल्स टू MB. व्हाट इज MA? मोल्स निकालना है अपने को 3% एक्वस सॉल्यूशन दिया है, तो 3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया है, A का कितना है 60 इंटू 1000, बाकी बचा क्योंकि 3% सॉल्यूशन है तो इंटू 97 विच इज इक्वल्स टू 9% इंटू 1000. मोलैलिटी का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में आएगा, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास अपने को कैलकुलेट करना है, इंटू क्योंकि 9% है तो 91 हो जाएगा, राइट. सो मॉलिक्यूलर मास इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 9 इंटू 1000 यहाँ कैंसिल हो गया, 9 इंटू 60 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 91. इसको आप जो है ना शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हो. यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 3 2 6. सो इट विल बी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यू कैन डू द रफ कैलकुलेशन. 9 इंटू 118 180 इंटू 9.7 आप कर सकते हो, तो 9.7 करेंगे तो अपने को 10 मिल जाएगा, लेकिन 10 की पावर हमें 1 रखनी है. यहाँ 1.8 यू कैन कीप इट एज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 इंटू 10. 1.8 आप ले सकते हो 2 इंटू 10 टू द पावर 4. मैं रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ, हाँ, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 1, तो ये 10 टू द पावर 3 हो गया. तो 2000 अपॉन 9, बहुत रफ कैलकुलेशन बाबा. 9 2 जा 18 1 9 2 जा 18 220 9 2 जा 18 222 के आसपास आ रहा है. तो ये वैल्यूज़ तो बहुत कम है, तो यही होगा. और आप कैलकुलेशन करके देखो तो यही आपको मिलने वाला है. मैंने रफ कैलकुलेशन करा है, काफ़ी बड़ा एरर लिया है, बट जो है एग्ज़ाम में हम कुछ इसी तरीके से टाइम को सेव कर सकते हैं. यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ, तो शायद हो सकता है आपको क्लियर नियरर वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन अगेन इट इज़ ऑर्गेनिक. यू कैन सी ऑर्गेनिक में रोड मैप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, और आपको जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नेम रिएजेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपके गलत ना हो. ओके, सो इन दिस केस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट टी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. आपको दिया हुआ है दिस इज पैरानाइट्रोटोल्यूइन. अब पैरानाइट्रोटोल्यूइन का ब्रोमिनेशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग है और CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो अगर हम इसको देखें तो ब्रोमिनेशन जो है, सब्सटीट्यूशन यहाँ पे तो होगा नहीं, या तो नाइट्रेशन की वजह से यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा. और क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है CH3, तो वो भी यहाँ पे आएगा या यहाँ आएगा, तो NO2 की जगह पे तो आ नहीं सकता. तो हमारे पास जो P मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Br आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NO2. तो ये हमारा P हो गया. अब हमें इसको टिन और HCl के साथ रिएक्ट करना है, तो NO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, राइट. रिडक्शन हो गया टिन के और HCl के साथ. फिर उसके बाद डायजोटाइजेशन, तो जब ये NO2 की जगह NH2 आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा Q. फिर ये डायजोटाइजेशन है, वेरी वेल नोन प्रोसेस. तो इसके अंदर जो है दिस विल कन्वर्ट इनटू N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है. तो ये डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा. कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बना ही लेते हैं. दिस इज CH3, दिस इज Br
and here it is N2 plus Cl minus। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H3PO2 तो क्या मिलने वाला है आपको? फिनॉल मिलने वाला है ना। सो यू विल गेट इट हियर एज फिनॉल CH3 Br एंड नहीं, वाटर के साथ करेंगे H3PO2 तो बेंजीन, ये पूरा का पूरा उड़ ही जाने वाला है, राइट। सो यू विल गेट इट हियर एज बेंजीन। और फिर जब हम इसको ट्रीट करेंगे KMnO4 के साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो CH3 विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH एंड Br। तो हमारे पास ऑप्शन, ये आंसर हो गया बी, ओके, सॉरी सी, दिस इज ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नाउ सब्जेक्टिव। आपको पता है जेई में है तो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस। सो इट इज सब्जेक्टिव, हियर यू हैव टू गिव द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ अ फ्लास्क इज कंटेनिंग एन एयर विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, एनी ओपन सिस्टम दिया है। इट इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। परसेंटेज ऑफ एयर विच इज एस्केप टू द एटमॉस्फेयर इज। यहाँ पे आपको इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT यूज करना है। नाउ फॉर इनिशियल स्टेट 300 केल्विन के अंदर यू विल बी हैविंग P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R T1 और P2 V2 इज इक्वल्स टू N2 R T2 हो जाएगा। तो ये जो है P1 V1 एंड P2 V2 दोनों क्योंकि सेम हो जाएंगे बिकॉज इट इज एन ओपन सिस्टम, सो यू विल गेट N1 R T1 is equals to N2 R T2. So you will get therefore N1 upon N2 is equals to T2 upon T1. Now T2 is 500. So you will get therefore N1 is equals to 5/3 of N2 मिल जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल वैल्यू जो है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं N2 इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ N1। तो इनिशियल अगर मोल्स अगर N1 है उसमें से जो गैस निकल गई वो कितनी हुई, फाइनल N2 कितना हुआ जब 500 केल्विन पे 3/5 ऑफ N1। तो कितना बचा अपने पास? 5 - 3 दैट इज 2/5 है ना। 2/5 that means how much? 0.4% जो होगा। अगर हम इसको into 100 कर दें तो you will get 40% of the air that has escaped. So you will get the answer here as 40. Next. In this question they are asking how many number of chiral carbon atoms are there in beta D plus glucose। तो यहाँ पे हमें हेवॉल्ट सिंथेसिस के हिसाब से जो है हेवॉल्ट प्रोजेक्शन फार्मूला के हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा फॉर बीटा D plus glucose। सो लेट अस सी, दिस इज द स्ट्रक्चर बाय हेवॉल्ट्स मेथड। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन ये वाला कायरल हो गया, हियर इट इज H, this is the another one, this is the third one, this is OH ना, ये H है, this is the fourth and here it is the fifth। So there are 5 chiral carbon, so 5 is the answer। So here it is the 5 answer। Next question, in this question they are asking how many sigma bonds and pi bonds in vinyl acetate। If they are sigma is x and pi is y तो उनका टोटल सम कितना होगा। तो बस इसमें से बस आपको विनाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाट इज एसीटेट? CH3 CO, एक मिनट, COO minus, this is acetate and vinyl CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब हम काउंट करते हैं तो दिख रहा है कि हमें Y जो पाई बॉन्ड्स हैं वो 2 ही हैं, X की वैल्यू हमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करनी है। ठीक है, सो 3 हाइड्रोजन के हो गए
CH बॉन्ड, यहाँ पे ये 3 हो गए, फिर एक ये सिग्मा हो गया, फिर यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है, फिर ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, दिस इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई एंड हियर इट इज 2 सिग्मा. सो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and here 2CH, 11. So you have got 11 sigma. So total इनका बने गया 11 plus 2 that is 13. So x plus y की वैल्यू हो गई 13 is the answer. Question number 24. Again it is thermodynamics related question. 1 mole, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, फटाफट कर लेंगे. मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस हो गया. फिर इट इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली. द internal energy change that is delta U is equals to n times CV delta T होता है. ठीक है. They are asking the temperature rise in Kelvin is. You have to use this formula delta U equals to n CV delta T. For monoatomic gas it is given to you here. monoatomic gas आपको दी हुई है, ठीक है ना. तो monoatomic gas के लिए CV is equals to 3/2R होता है. सो हम ये यहाँ पे पुट अप कर देंगे. सो डेल्टा U इक्वल्स टू n इंटू 3/2R इंटू डेल्टा T. तो वही तो आपको डेल्टा T कैलकुलेट करना है ये, ठीक है. इंटरनल एनर्जी चेंज आपको दी हुई है 24 कैलोरीज. तो जब आपको ये 24 कैलोरीज दी हुई है और n की वैल्यू यानी मोल्स दैट इज 1 इंटू 3/2, R की वैल्यू अब क्योंकि कैलोरीज है तो R की वैल्यू 1.9 जितना होता है. तो हम उसको जो है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक इट एज 2. ठीक है. नहीं तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है कि डेसिमल अप टू हाउ मेनी डेसिमल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन ये देखना है, तो उसके हिसाब से आंसर सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में इंटीजर टाइप में आते हैं. क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो थोड़ा बच्चे क्लियर नहीं है तो हो सकता है. बट एनीवेज डेल्टा टी हम कैलकुलेट करके देखते हैं. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट डेल्टा टी यू विल गेट इट एज 24 इंटू ये 2 तो कैंसिल हो गया, 24/3 रह जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 8. तो हमारे पास ये आंसर हो गया 8 इज द आंसर. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. दे आर दैट इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मोनोबेसिक एसिड. यानी कि आपको जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी लैम्डा इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है 348 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. राइट. नाउ दे हैव गिवन द रेजिस्टिविटी. तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी के लिए आपको 1 अपॉन रेजिस्टिविटी करेंगे यानी 1/18.5 करेंगे तो आपको कप्पा मिल जाने वाला है. ओके. सो that is ohms inverse centimeter inverse. अब they are asking degree of dissociation यानी कि अल्फा कैलकुलेट करना है लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी. तो लैम्डा EQ आपको कैलकुलेट करना, इन्फिनिटी दिया हुआ है, और फिर जब आप परसेंटेज अल्फा निकालना है तो जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट दिस आंसर. तो इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है. सो लेट अस डू द क्वेश्चन. पहले तो हम लैम्डा EQ निकाल लेते हैं. तो व्हाट इज लैम्डा EQ? K इंटू 1000 अपॉन n. K की वैल्यू आपने ले ली 1/18.5 इंटू 10 टू द पावर सो यू कैन सी हियर लैम्डा EQ अपने ने कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? K इंटू 1000 अपॉन n. दिस इज 1/18.5 इंटू 1000. अब n निकालना है तो n मैं यहाँ अलग से कर देती हूँ. अपने को मास दिया है, कितना दिया है मास? 15 ग्राम्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय हाउ मच, दैट इज इक्विवेलेंट मास। क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, तो ये 49 हो गया, राइट। फिर इंटू 1 लीटर दिया है यानी कि 1000 ml हो गया, 1000 ml यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी यहाँ 1000 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिवाइड बाय 15 हो जाएगा और इंटू 49 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 49,000 अपॉन 18.5 इंटू 15। हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स का दिया हुआ है, तो हमें प्रॉपर वैल्यू देनी, और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है, यू कैन सी you have to report the answer up to 2 decimal places without rounding up, so you can't do the calculation with manipulations, so we have to do actual calculation। 49,000 divided by 18.5 into 15, वो हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, you will get it as 176.58, ठीक है, ये तुमको लैम्डा EQ मिल गया। Now simply you have to find out alpha is equals to 176.58 divided by how much it is given to you, 348, तो you will get 0.5074 मिलने वाला है। और जब हम इसको इंटू 100 करेंगे यानी कि परसेंटेज निकालना है, तो you will get 50.74 जो है आपका आंसर आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 50.74, right? So this is going to be your answer. We will be meeting in the next session with new energy, new enthusiasm. Till then, have a nice time, enjoy, at the same time work hard and smart work. Bye.